آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے سچے دوست، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان۔ مسجد نبوی میں افطار کے لیے نئے قوانین، قبل از وقت اجازت لازمی۔ MLC انتخابات میں بی جے پی کو کامیاب بنانے کی کوشش، BRS نے امیدوار کو میدان میں نہیں اتارا، کانگریس کا الزام۔ مردے کا علاج کرنے ہاسپٹل انتظامیہ پر الزام، ریاستی وزیر صحت نے تحقیقات کی دی ہدایت۔ اور دیوان دیڑی میں واقع کمپلیکس میں محیط آتش زدگی، کئی گھنٹوں بعد آگ پر پایا گیا قابو، کروڑوں روپے مالیاتی نقصان۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے سب سے بڑے دوست ہیں۔ وزیر اعظم نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اسرائیل اور امریکہ کے اتحاد کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی قیادت میں اسرائیل کا امریکہ سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہ دینے پر ٹرمپ اور ہم متفق ہیں۔ مسجد نبوی میں رمضان مبارک کے دوران افطار فراہم کرنے والوں کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے گئے ہیں، جس کے لیے پیشگی اجازت نامہ لینا لازمی ہوگا۔ عرب میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جنرل اتھارٹی برائے حرمین شریفین نے مسجد نبوی میں افطار فراہم کرنے کے خواہش مند افراد اور اداروں کے لیے ایک آن لائن پورٹل متعارف کروا دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روزے داروں کو افطاری کرانے کی سعادت حاصل کرنے کے خواہش مندوں کا اندراج اس پورٹل کے ذریعے کیا جائے گا۔ لیبیا میں پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے لیبیا میں ایک اور کشتی حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لیبیا کے ساحل کے قریب پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی کشتی حادثے کا شکار ہوئی۔ لیبیا میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق 65 مسافروں کو لے جانے والی کشتی مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب الٹ گئی، جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ بچاؤ اور راحت کاری کی ٹیموں نے اب تک 10 نعشوں کو باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے مہاکمبھ کے دوران پیش آنے والے حادثات پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے غم کا باعث ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق مشاورت کے قومی صدر فیروز احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم ان تمام مسلمانوں کو تہہ دل سے سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے فرقہ واریت اور نفرت کے اس ماحول میں اپنے مذہب، ذات پات اور فرقے سے بالاتر ہو کر حادثے کا شکار ہونے والے ہندو یاتریوں کی بے لوث خدمات انجام دی۔ انہوں نے زخمیوں کو ہاسپٹلز تک پہنچانے، بھوکوں کو کھانا کھلانے، خوفزدہ افراد کو تسلی دینے اور ان کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے۔ کہا گیا ہے کہ جس دردمندی اور انسانیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ ہمارے قومی اتحاد اور بھائی چارے کی روشن مثال ہے۔ کانگریس قائد سونیا گاندھی نے پیر کو ایوان بالا راجیہ سبھا میں ملک میں غذائیت اور غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس کے لیے مناسب رقم مختص کی جانی چاہیے۔ انہوں نے ایوان میں وقفہ صفر کے دوران چیئرمین کی اجازت سے اٹھائے گئے معاملات کے تحت کہا کہ حکومت تاریخی مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق غذائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مختص رقم نہیں کر رہی ہے۔ The National Food Security Act NFSA, introduced by the UPA government in September 2013, was a landmark initiative aimed at ensuring food and nutritional security for the country's 140 crore population. This legislation played a crucial role in protecting millions of vulnerable households from starvation, particularly during the COVID-19 crisis. It is this act that provided the basis for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. کانگریس کے سابق صدر اور اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ جمہوریت میں حکومت کو انتخابی عمل میں غیر جانبداری سے کام کرنا چاہیے اور جب بھی وہ مداخلت کرتی ہے تو جمہوریت دم توڑنے لگتی ہے۔
राहुल गांधी ने कहा कि सेहतमंद जमहूरियत के लिए हुकूमत को इंतखाबी अमल में किसी भी तरह से मदाखलत नहीं करनी चाहिए, इसे गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए। उनका कहना है कि इंतखाबी अमल में हुकूमती मदाखलत जमहूरियत के लिए ठीक नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में यही सब चल रहा है। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल में हुकूमती मदाखलत का मतलब जमहूरियत का कत्ल है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने चिलकूर बालाजी मंदिर के चीफ पुजारी रंगाराजन पर हमले के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने रंगाराजन से फ़ोन पर बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ऐसे हमलों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पुलिस ओहदेदारों को हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ज़ात पात पर मबनी सर्वे के लिए कायम करदा डेडिकेटेड कमीशन ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। पीर को कमीशन के चेयरमैन साबिक IAS ऑफिसर बी वेंकटेश्वर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात करके ये रिपोर्ट हवाले की। ये कमीशन हाई कोर्ट की हिदायत पर गुज़िश्ता साल नवंबर में तश्कील दिया गया था ताकि मजालिस मकामी इदारों के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात तय करने के मकसद से आबादी का डेटा इकट्ठा किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम करदा यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी को मरकजी हुकूमत से कोई माली मदद नहीं मिलेगी। लोकसभा में वक्फ़े सवालात के दौरान भुवनगिर के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सी किरण कुमार रेड्डी ने इस मसले को उठाया और मरकज़ से फंड्स फराहम करने का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत का मकसद इस यूनिवर्सिटी के जरिए तलबा को महारत की तरबियत देकर रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। इस मंसूबे के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं और 300 तक 500 करोड़ रुपए के खुसूसी कॉर्पस फंड्स के क़याम की भी मनसूबाबंदी की जा रही है। Thank you, sir. I am proud to say, under the able and dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy Garu, he is ambitiously setting up the Young India Skills University in Hyderabad, which is his brainchild, with an objective of providing job opportunities to the students, to imparting skill development training in accordance to the requirements of the local industries. तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने हैदराबाद के मोइनाबाद में वाक़ चिलकूर बालाजी मंदिर के पुजारी रंगाराजन पर हमले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रामराज के नाम पर गुंडागर्दी और हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग राम के नाम को बदनाम करके तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काबिल मजम्मत है। हुकूमत ऐसे लोगों को हरगिज़ नहीं बख्शेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग धर्म और समाज के लिए काम कर रहे हैं, इन पर इस तरह के हमले जुल्म है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक़ दाखिल 3 अलग अलग दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई। BRS के कारगुजार सदर KTR, जो एक दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि तेलंगाना के स्पीकर 7 अरकान असम्बली की नाअहली से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर फैसला लेने में ताख़ीर कर रहे हैं। अपनी दरख्वास्त में KT रामाराव ने तेलंगाना के स्पीकर और MLAs P श्रीनिवास रेड्डी, P कृष्णा मोहन रेड्डी, K यादయ్య, T प्रकाश गौड़, अरकपुड़ी गांधी, G महिपाल रेड्डी और M संजय कुमार को फरीक बनाया था। तेलंगाना के वजीर श्रीधर बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने MLC इंतखाबात में BJP को कामयाब बनाने के लिए जानबूझकर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत नौजवानों की तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रही है और अवामी मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि पसमानदा तबक़ात की मरदमशुमारी महज इंतखाबात के लिए नहीं की गई, बल्कि एक संजीदा कदम है जो मुकम्मल देनदारी के साथ किया गया है। उन्होंने कहा कि BJP और BRS जैसी जमातें इंतखाबी फ़ायदे के लिए ऐसे इक़दामात करती हैं। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने हैदराबाद के इलाके मियाँपुर में वाक़ कानगी हॉस्पिटल में पेश आए चौंका देने वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने हॉस्पिटल की धोखाधड़ी और लापरवाही पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और महकमा सेहत के हुक्काम को हिदायत दी कि ऐसे शर्मनाक हरकत दोबारा न हो।
ये मामला उस वक्त सामने आया जब आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले की 26 साल खातून सुहासिनी की मौत के बाद उसके घर वालों ने हॉस्पिटल के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहासिनी को 1 माह कबल इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए। जब मरीजा के घर वाले मजीद अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल न रहे तो हॉस्पिटल इंतजामिया ने इन्हें मशवरा दिया कि वो मरीजा को निम्स हॉस्पिटल ले जाएं। और जब सुहासिनी को निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही मर चुकी है। घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्पिटल इंतजामिया ने इन्हें मौत की तलिया दिए बगैर कई दिनों तक इलाज का ड्रामा रचा और पैसे वसूल करते रहे। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस और बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो खुफिया माहदे के तहत एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात की तरह बीआरएस एक बार फिर बीजेपी की बिलवास्ता तायद कर रही है। करीमनगर में कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी के पर्चे नामजदगी के मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी इंतखाबात में एक मजबूत और अहल उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को मुंतखब किया है और तमाम ग्रेजुएट वोटर्स को इनकी तायद के लिए आगे आना चाहिए। रुकन कानून साज काउंसिल बीआरएस कल्वकुंटला कविता ने रियासती कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी एक आईफोन की तरह पायदार और कारआमद थी, जबकि रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी महज एक चीनी फ़ोन की तरह है जो देखने में तो खूबसूरत नज़र आता है मगर फिलवाक़े नाकारा और बेकार साबित होता है। वो जगतियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। కేసీఆర్ గారి పాలనకు రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనకు ఎంత తేడా ఉందంటే కేసీఆర్ గారి పాలన ఐఫోన్ లాగా ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలన చైనా ఫోన్ లెక్క ఉన్నది। ఐఫోన్ కు చైనా ఫోన్ కి ఎంత తేడా ఉంటుందో కేసీఆర్ గారికి రేవంత్ రెడ్డి గారికి అంత తేడా ఉన్నది। అంటే సూపుకు బానే ఉంటది కానీ ఏం పనిచేయదు అన్నట్టు అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। మాటలు ఇచ్చి బీసీల ఓట్లు వేయించుకొని ఇవాళ బీసీలను మోసం చేస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని చరిత్ర క్షమించదు, బీసీలు క్షమించరు। వారికి ఎవరు లేరు, వారి పక్షాన మాట్లాడారు అనుకుంటున్నారేమో। మేమందరం కూడా అండగా నిలబడి ఉన్నాం। ఖచ్చితంగా బీసీలకు మీరు ప్రామిస్ చేసినటువంటి 42% ఇచ్చే వరకు కూడా తగ్గేదే లేదు ఖచ్చితంగా। फोन टैपिंग केस में साबिक डीसीपी राधा कृष्ण राव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी दायर की है। अदालत ने इनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए इसकी समाअत की। ये केस उस वक्त मजीद संगीन हो गया जब सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर चक्रधर गौड़ की शिकायत पर हैदराबाद की पंजगुट्टा पुलिस ने साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव समेत कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में अंबेडकर चौराहे पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। सुबह के अवलीन सातों में वाकया पेश आया। मुकामी अफराद ने दुकान से धुआं उठता हुआ देखा और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। ताले जल्दी न खुलने की वजह से जेसीबी की मदद से दुकान का शटर तोड़कर आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया जिससे करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सका। तेलंगाना के ज़िले आसिफाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम में इंस्पेक्टर पुलिस के साथ साथ दीगर 60 मुलाजिमिन पुलिस ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 82 बाइक्स, 4 ऑटोस और एक कार को जब्त कर लिया जो मुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जा रही थीं। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि एएसपी चितरंजन की हिदायत पर यह तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसका बुनियादी मकसद समाज में जराइम पर काबू पाना और आवाम में एतमाद पैदा करना है। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में 2 रेस्टोरेंट्स पर फूड सेफ्टी की टीमों ने छापे मारे। इन धावों के दौरान फूड सेफ्टी एक्ट 2006 की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों का पता चला। कमिश्नर फूड सेफ्टी हैदराबाद की टीमों ने यह धावा किया। एक रेस्टोरेंट में झिंगुर पाए गए, साथ ही रेफ्रिजरेटर में गैर हुज़ान सेहत का माहौल पाया गया। फ्रिज में किसी लेबल के बगैर बड़ी तादाद में उबली हुई सब्जियां पाई गई। बर्तन साफ नहीं पाए गए और बावर्ची खाने में नामुनासिब ड्रेनेज निज़ाम पाया गया। पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी नहीं पाया गया। हैदराबाद के पुराने शहर के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके दीवान देवड़ी में कल रात देर गए एक कॉम्प्लेक्स में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता करोड़ों रुपए का मालियाती नुकसान बताया गया है।
तफसीलात के मुताबिक दीवानदेड़ी में वाक़ एक कॉम्प्लेक्स में कल रात तकरीबन 2:15 बजे आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई और आग इस कदर ज़्यादा थी कि शोले काफ़ी ऊंचाई तक उठ रहे थे और इलाके में कसीफ धुएं के बादल छाए गए थे। आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मकाम वाक़े पर पहुंच गया और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आज आग पर काबू पाया गया। बताया गया है कि ताजरीन ने यहाँ रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र काफ़ी स्टॉक ला कर रखा था, जो आग की नज़र हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के चार मीनार के रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली मकाम वाक़े पर पहुँच गए। उनके हमरा MLC रियाजुल हसन आफंदी और पत्थरगट्टी डिवीज़न के मजलिसी कारपोरेटर जनाब सोहेल कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने वहां पहुंचकर अपनी निगरानी में आग बुझाने का काम करवाया। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड के आला हुक्काम से राब्ता कायम करते हुए मजीद फायर टेंडर्स को तलब किया। तकरीबन 10 फायर इंजनों ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान महकमा फायर ब्रिगेड के अमले ने आतिज़दगी से मुतासरा इमारत और इससे मुतसिल आशुरखाना में फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बचाने में कामयाबी हासिल की। नए पुल के पास थोड़ा सा आग लग गई हमारे दोस्त की दुकान HL टेक्सटाइल पे काफ़ी 12:30 को लगी। एक ही फायर स्टेशन है बट अवेलेबल अभी जल्द से जल्द यहाँ ना फायर स्टेशन की ज़रूरत है। थोड़ा जल्दी भी 12:30-1 बजे लगी, 12:30-1 बजे आग लगी। अभी तक कितने गाड़ी लगे यहाँ पर? 2 गाड़ी 3 गाड़ी है बट अवेलेबल नहीं है अभी। गाड़ियाँ आ रहे हैं पानी के, थोड़ा पानी का इशू चल रहा है। पानी का इशू चल रहा है भाई। गाड़ी आ रही है, आधी गाड़ी टेम्पे भी नहीं आ रही, आधी गाड़ी बेच रही। अभी गाड़ी टेम्पे आती तो आग लगती नहीं, जल्दी आग बुझ जाती थी। कहाँ से शुरू होगी आगे? अगर टेम्पे आती तो आग नहीं लगती थी। गाड़ी का प्रॉब्लम है, गाड़ी टेम्पे नहीं आ रही और आधी गाड़ी भेज रहे। आधी गाड़ी भेज रहे और ड्राइवर भी एक ही है। एक ड्राइवर सही टाइम पे आते तो पूरा बच सकता था मालूम। आप देख सकते हैं आग लगी, पानी का पाइप, ये सारी चीजें लपेट में है। लपेट में आ गए। सही टाइम पे पानी रहा था तो आग देख सकते हैं। पानी हम लोग डाल रहे, पाइप हम लोग मार रहे। आदमी एक ही जना है खाली वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के सच्चे दोस्त, इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। मस्जिद नबी में इफ्तार के लिए नए कवानीन, क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़त लाजमी। MLC इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाने की कोशिश, BRS ने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा, कांग्रेस का इल्जाम। मुर्दे का इलाज करने हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्जाम, रियासती वजीर सेहत ने तहकीकात की दी हिदायत। और दीवानदेड़ी में वाक़ कॉम्प्लेक्स में मुहिम आतिशज़दगी, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू, करोड़ों रुपए मालियाती नुकसान। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।